तो कल कहाँ पे रुके थे हम लोग सामंतवाद में? कौन बताएगा जल्दी से? सामंतवाद के बारे में बता रहे थे, मध्यकाल। जल्दी कौन बताएगा? कौन है सबसे इंटेलिजेंट? कल की मुख्य घटनाएं जल्दी बताओ कोई। So we had a lesson on Dark Age in Europe. We had seen that in Roman Empire, the influence of church and religious preachers have grown so far that it led to exploitation of the low classes, which had led to the Dark Ages in that particular area. And other conditions were also putting towards the Dark Ages, and the European people had declined. The Roman Empire also got declined due to the Dark Ages. We had, and the overcoming of that particular period is known as Renaissance. Yeah. But the main central point you are missing. The main central point why this is called Dark Ages. May I The speak? influence, the influence of church connected and with knowledge. religious leaders. It's connected with knowledge, production of And knowledge. there was less research on science and culture and arts. Why less? Muslims were invading. Why They it had was this less? famine thing also. No. Invasion of Muslim was very late. It was in the 15th century. Okay, sir. It was I in the apologize. 15th century. I'm talking of much earlier. So why the knowledge production was very less? Why? So because religious preachers never wanted people to get educated Yes. or get scientific knowledge, and they just want them to be under their influence, and so they scared all the people, the citizenry, of Almighty and all the religious factors, so that they become under them, under their influence, and also pay back wealth to the church. Because we Yes, see and- here the monarchs were less important and less powerful than the religious preachers. Yeah, So, they were under the Roman Empire in a way. So Roman Empire was spread into two continents, and it was divided into two parts: Roman Holy Empire, रोमन पवित्र साम्राज्य दो भागों में बटा था. It was divided into the western and the eastern. The eastern was spread till Middle East, present Turkey, Iran, Iraq and all, Palestine even. So it fell in 1453. The Turks invaded this area. They came from the Central Asia, from Mongolia side. They invaded this area and they captured the Constantinople. And what's the name of Constantinople today? Istanbul. Very good. Istanbul. What is Istanbul known for? क्या विशेषता है इस्तांबुल की? It was captured by Muslim in 1453 AD. That's okay. But now this city is known for what? It's very interesting and a very big tourist attraction place. Millions of tourists go every year to see what it Sir, is Hagia known for. Sophia. Eh? Hagia Sophia. नहीं समझा नहीं क्या है. Sir, Hagia Sophia What is Museum, which is now converted into masjid. that? No. This city is famous for what? It's connecting two continents. Istanbul or Constantinople is connecting Asia and Europe with a bridge.
अंडरस्टैंड नाउ? पुल बना है वहां, 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, एशिया और यूरोप को। तुर्की का बंदरगाह है ये बहुत फेमस, तुर्की का बंदरगाह है फेमस। It's connecting to continents, that's why it's very interesting. And the most ancient city of the world, one of the very ancient city of the world of ancient time, ancient period. तो वहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं, दुनिया के टूरिस्ट जाते हैं देखने, और बहुत हिस्टोरिक प्लेस है ये, हिस्टोरिक प्लेस। It has the reminiscences of Roman culture. It has the architecture. It has the culture. It has the influence of Roman culture in Arabic country, which is very rich. बहुत प्रसिद्ध शहर है जहां आपको रोमन कल्चर, रोमन आर्किटेक्ट, बिल्डिंगें, प्राचीन चर्चें, उसका प्रभाव दिखेगा। रोमन आर्किटेक्ट अलग तरह का होता है, गुंबज बने होते हैं ऊपर, आपने देखे होंगे, ब्यूटीफुल रोमन। ये हम सब देखेंगे रेनेसां में जब चलेंगे। तो तुर्की में ये शहर जो है एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इंटरेस्टिंग है, एक ब्रिज पार करो तो यूरोप पहुंच जाते हैं और एशिया पहुंच जाते हैं। 1453 में अंत हो गया था इस शहर का। तुर्कों ने मंगोलिया की तरफ से आकर आक्रमण किया था, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया था। वहां रहने वाले सभी रोमन लोग, इटालियन लोग इटली भाग गए। तुर्कों ने उन्हें खदेड़ दिया, अत्याचार किए और वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे वो 3 महाद्वीपों में फैल गया, नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। तुर्कों ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम था, जो प्रथम विश्व युद्ध तक चला 500 साल, क्या नाम था? ऑटोमन एम्पायर। वेरी गुड, ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर था जो दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी थी, सबसे बड़ी कीचड़ था, जहां बहुत समस्याएं रही। यूरोप के देश हमेशा इसमें उलझे रहे, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इनके थे सब यूरोपियन पावर्स के। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुसलमानों का कब्जा क्रिश्चियन लोगों के देशों पर था। क्रिश्चियन लोग, रोमन कैथोलिक चर्च के लोग, ईसाई लोगों पे मुस्लिमों का, और उनका धर्म 36 का आंकड़ा है। इस्लाम धर्म क्रिश्चियन धर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आए दिन तुर्की के सुल्तान जो तुर्की में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किए, आने वाली शताब्दियों में अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, मोरक्को लेके आवाज नहीं आ रही सर। माइक बंद कर लें अपने अपने, जिसके भी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? और मेरी आनी चाहिए। तो तुर्कों ने धीरे धीरे आप पोर्तुगाल, स्पेन तक अपने स्थापित किया साम्राज्य, वहां तक उनका कब्जा था। पूरा ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मध्यकाल को समझे मध्यकाल को। हमारे कोर्स में यही सारा है पढ़ने को, तो इसकी पूरी जड़ों को समझ लें अच्छी तरह, सब चीजों को। बेजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं, पूर्वी यूरोपियन जो रोमन साम्राज्य था, राजनीतिक नहीं, इटली से कंट्रोल होते थे सारे यूरोप के राजा।
रोमन कैथोलिक चर्च के सामने नतमस्तक होते थे। सर्वोपरि आदेश चलते थे रोमन कैथोलिक चर्च के। यूरोप के राजा उनके सामने नतमस्तक होते थे सभी देशों के। तो ये साम्राज्य यानी उनका पूरा कब्जा था, एक तरह से दिमाग पर कब्जा था। तो 1453 के बाद जो है इटली के लोग भाग गए, तुर्की छोड़ दिया, पूर्वी साम्राज्य डिसमेंटल हो गया, खत्म हो गया। एंड दे वर कन्फाइंड टू इटली नाउ। इटली में जाके रहने लगे और वहीं से फिर पुनर्जागरण शुरू हुआ। हमारा पुनर्जागरण जो आपका पहला चैप्टर है, जिसमें अभी हम बाद में चलेंगे, पहले पूरा खेत आपका उपजाऊ बना लें, पूरे दिमाग में अच्छी तरह बीज डाल दें हम, फिर वो बड़ी जल्दी से प्रस्फुटित होंगे आपके बीज। दे विल जर्मिनेट वेरी फास्ट। ठीक है ना? हाँ, रट्टा नहीं मारना, किताबें नहीं रटना, समझने की कोशिश करें। ठीक है? दुनिया को, विश्व को। और नक्शा सामने रखें। जिनके पास नक्शे नहीं है, कल की डेट में नक्शा पूरा प्राप्त कर लें कहीं से भी। मैप, वर्ल्ड मैप आपके सामने होना चाहिए। जल्दी खरीद लें आज की डेट में। कल से मैं आपको ले चलूंगा पूरे वर्ल्ड टूर पे। तैयार है सब? अरे कोई तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक पूरी दुनिया का हम टूर लगाएंगे, उसके इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ये तो हम अंधेरे में लाठी घुमाते रहेंगे। अंधेरे में लाठ घुमाने जैसा है। रोशनी तभी दिमाग में आएगी जब पूरी दुनिया आपके सामने होगी। नॉलेज का बेसिक नॉलेज है आपका दुनिया का ज्ञान होना। और जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की बात कर रहे हैं हम। कहाँ तुर्की है, कहाँ इस्तांबुल है, कहाँ हाइटी है, कहाँ ग्रेनाडा है, कहाँ ब्राजील है, कहाँ मैक्सिको है, कहाँ हांडुरास है, कहाँ वेस्ट इंडीज है। समझ में आ रही बात? और क्या कहाँ की विशेषताएं हैं, दुनिया कैसे थी, कौन से देश थे, कब क्या हुआ, मोटा मोटा ज्ञान, भले थोड़ा टाइम लगे। वेरी गुड। कौन है ये? सिमरन शर्मा के सामने मैप दिख रहा है, सब देख रहे हैं? सिमरन सबको दिखाओ बेटा। Yes, sir. वेरी गुड। ऐसा मैप सबको उपलब्ध करा दो सिमरन। सिमरन सबको दिला देगी एक मैप, बता दो कहाँ मिलता है। कल से सब अपने बेडरूम में लगाएं ये मैप। ये आपकी सर जिंदगी। एक्चुअली मेरी नोटबुक में लगा हुआ था, इसलिए है मेरे पास ये। कौन बोल रहा है ये? सर सिमरन। यस सर। नोटबुक में मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है ये। सर वो कैमरे में ऐसे ही लग रहा है। सर ये नोटबुक है। ओके। और मेरे घर में भी है। हाँ, सर ये तो नॉर्मल मैप सर सब जगह मिल जाता है। थोड़ा बड़ा रखें आप। बड़ा, जितना बड़ा मिल जाए, बड़े नहीं मिलते यहाँ। 3x2 का मिलेगा कोई ज्यादा आपको। तो आज ही प्राप्त कर लें 100-150 रुपए में। पैसे नहीं हो तो मुझसे ले लें, हम भेज देंगे आपको, पेटीएम कर देंगे जिसको प्रॉब्लम हो पैसों की। तो मैप सबके घर में होना चाहिए। सुरभि के पास भी है, गौरव के पास भी है। हाँ देखो, गौरव भी दिखा रहा है मैप। और मेरे पास सारे हैं। सबके पास है सर ये वर्ल्ड का है और ये एमपी का है। नहीं, एमपी नहीं चाहिए हमें, वर्ल्ड का चाहिए। और सर इंडिया का भी है। हाँ, इंडिया का भी नहीं चाहिए। अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना? इंडिया का आपको पता है, इंडिया आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा बाद में। जब पूरी दुनिया घूमेंगे आप, तो आप आईएएस पास करना हो, पीएससी पास करना हो, नेट जेट कुछ भी पास करना हो, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अभी आपको बीए में ही लगने लगेगा कि आईएएस पास करना मजाक सा है। बनना है आप लोगों को आईएएस किसी को? Yes, sir. रैंक है? कितने लोग हैं? बहुत आए। लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं? जल्दी बोलो। मैं वैशाली बोल रही हूँ। कौन नहीं बनना चाहता है ये बता दो, बाकी तो सभी बनना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, सभी को बनना है। सब बन सकते हैं, कहना मानोगे तो। 100 के 100 बैठे हैं क्लास में, 100 के 100 कलेक्टर बन सकते हैं।
हालांकि भारत में इतने कलेक्टरों की जरूरत नहीं है, फिर भी कंपटीशन में सब जा सकते हैं आप। और ये नॉलेज आपके जो है बेसिक है, बेसिक, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। रिमेंबर ऑलवेज, जरूरी नहीं कलेक्टर, ये तो मजाक की बात है। जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब नॉलेज होता है। और ये वर्ल्ड का नॉलेज होना, वर्ल्ड का नॉलेज होना, कंट्रियों का नॉलेज होना, लोगों का नॉलेज होना, देशों का नॉलेज और वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना, इससे आपकी पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। तो कल से सब मैप तैयार रखें। जिसके पास मैप नहीं होगा, मुझे नहीं पता, हम आपको पूरी दुनिया में दौड़ा के ले चलेंगे। सैटेलाइट व्यू, एरियल व्यू, है ना, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है। कितने देश हैं पूरी दुनिया में, कौन बताएगा? 113 में सर। 193. वो तो यूएन 195. मेंबर्स 204 सर। हैं। सर 204। अब 206 हो गए हैं। क्या हो गया? टाइम आउट हो रहा है, कट जाता है बीच बीच में। आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ अभी ओके। ये देश है मेरे जानकारी के हिसाब से लेटेस्ट दुनिया में 196 यूएन मेंबर्स हैं। 11 देश, 194 हैं शायद, 11-12 देश हैं जो मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस के। तो फिलहाल हमें मोटे मोटे देशों का पता होना चाहिए, कम से कम 150 कंट्रीज, 200 में से आपको पता होनी चाहिए। उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए मोटी मोटी, और कौन से लोग रहते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या चल रहा है वहाँ, क्या उनका कोई बहुत बड़ी बात रही हो विशेष इतिहास में, वो भी जानना जरूरी है। तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी क्लियर हो जाएगी, भले सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, कि इसके बगैर हम आपका पेपर जो पढ़ाएंगे तो छोटा सा है, 1 महीने में ख़त्म कर देंगे यदि मैंने आपको पढ़ाया आगे तो। लेकिन हमें किताब के बाहर हटकर चलना है। ब्लड की तरह बॉडी में जाना चाहिए, ग्लूकोज की तरह बूंद बूंद करके, गिलास नहीं पीना पर भर के। ठीक है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो नॉलेज देने के लिए पूरी दुनिया आपकी 5 उंगलियों की तरह सामने दिखनी चाहिए। समझ में आई सबको बात? आप हाँ, 5% तो मैं आपको दे दूंगा, 95% आपको आगे बढ़ाना है। मैं तो सिर्फ आपको चाबी दूंगा, स्कूटर आपको खुद चलाना है, बाइक आपको खुद चलानी है। समझ में आई बात? मैं तो आपको एक सैटेलाइट एरियल व्यू आपको वर्ल्ड का देंगे, पूरी दुनिया में हम घुमा देंगे आपको, उंगली पकड़ के सब क्लास में रहना, मैप सामने रखना। ये मैंने पहले बोल दिया आपको, कल से मैप प्राप्त कर लें जिनके पास नहीं है, और जितना बड़ा हो उतना अच्छा, और हमेशा अपने साथ रखें मरते दम तक। समझ में आ गई बात? घर वालों को भी सिखाएं, अपने बेड पे रखें लटका के, जहाँ भी आप सोते हैं, ज़्यादा बैठते उठते हैं, वहाँ लटका के रखें मैप। और उसमें उसका कोई अंत नहीं है, जिंदगी भर भी पढ़ोगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो मैप में बहुत सारी चीज़ें छुपी है, तो आपको पता चल जाएगा। ग्रीनाडा देश कहाँ है, नाम आपने शायद सुना ही नहीं होगा आज तक, है ना? ग्रीनाडा कहाँ है, क्या है वहाँ, कौन से लोग रहते हैं, क्या इतिहास है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, आपको पता ही नहीं कुछ भी किधर है क्या है। तो मैप हम सामने रखेंगे। आजकल की दुनिया में हाईटेक दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, इसमें मैप का ज्ञान, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्ञान, ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं आप लोग? क्या ज्योग्राफी है आप लोगों का किसी का? यस सर। कितने लोग होंगे? 50%, 50%, 80% ज्योग्राफी वाले? 30%। ओके,
हाँ तो चलो, ज्योग्राफी में आपको शायद ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे ऐसा पढ़ाएंगे आपको, हर देश में घुमाएंगे, ऐसा वहाँ भी शायद नहीं है कोर्स में कहीं भी। हम आपको हिस्ट्री में ही घुमा देंगे, ठीक है? तो आपकी ज्योग्राफी भी पूरी सही हो जाएगी अपने आप। और इंटरनेट भी चलाते हो आप, देखो इंटरनेट भी चलाते हैं हम, बहुत कुछ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, टीवी में रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं ना, कहीं की बात आ गई, वहाँ भूकंप आ गया, पता ही नहीं किधर की बात कर रहे हैं, है ना? कोई कह रहे हांडुरास में भूकंप आ गया, आपको पता नहीं हांडुरास किधर है, छोटे मोटे देश बता रहा हूँ मैं। तो ये आपको सब क्लियर हो जाएगा यदि एंटेना सही होगा आपका, ओरिएंटेशन सही होगा, ठीक है? तो नॉलेज की दुनिया में चलते हैं, बहुत होशियार रहें और खूब पढ़ाई करें अपने आप। तो ये मध्यकाल मैंने आपको इसलिए घुमाया, पूरा प्राचीन काल से मध्यकाल आधुनिक काल तक ला रहा हूं मैं आपको। ये तो आपका विश्व इतिहास की एक बेसिक ट्रैक्टर फेर दिया हमने दिमाग में कि कैसे इतिहास आगे बढ़ा है। ये राजाओं की कहानियां नहीं है, युद्धों की कहानियां नहीं है, उत्पादन पे बेस्ड है, उत्पादन, प्रोडक्शन। सामंतवाद में कितनी क्लास थी, जल्दी बताओ? सामंतवाद में 2 ही क्लास कौन कौन सी थी? 2 वर्ग होते हैं हर लॉर्ड्स समाज। थे और दूसरा कॉमन पीपल। फिर से बोलो, हिंदी में बोलो। अरे बोलो, 50 लोग बैठे हैं। पहले उत्पादन के साधनों का मालिक और दूसरा काम करने वाला किसान। नाम क्या था उनका? सामंत, सामंत, साहूकार। साहूकार नहीं, साहूकार कर्ज देने वाला होता है। प्रोलेटारिएट हैं? बुर्जियोस। बुर्जुआ तो पूंजीवाद में होते हैं। सामंत और दूसरा स्लेव, दास। हैं? दास। क्या है? दास नहीं, वो स्लेवरी सिस्टम में था, मास्टर एंड द स्लेव। स्लेवरी सिस्टम में 2 वर्ग थे, मालिक एवं गुलाम। सामंतवाद में 2 वर्ग हैं, सामंत एवं किसान। पेशेंट। क्यों भूल गए? इतनी कल मैंने कितना समझाया, परसों समझाया। 2 ही वर्ग होते हैं इन हर समाज में। 5 अलग अलग तरह के सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन से गुजरे हम। क्या बोलते हैं इसको? सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन। सामाजिक आर्थिक ढांचा एक विशेष तरह का होता है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। सामंतवाद की विशेषताएं हैं, उत्पादन के साधनों का मालिक, जैसा किसी ने बताया, सामंत थे, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक। बुंदेलखंड में ही 35 रियासतें थी, ये 35 सामंत थे, छोटे छोटे राजकुमार। होलकर सिंधिया नाम सुने आपने? माधवराव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, और आजकल कौन सा सिंधिया है? ज्योतिरादित्य। हाँ, ये सामंत थे अपनी तरह के भारत में, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक, रियासतों के मालिक, ठीक है? और अंग्रेजों के चमचे थे सब। कोई योगदान नहीं है इनका देश की आजादी में, सब चमचे थे, समझे ना? इनसे ज्यादा योगदान हमारे खटमल और मच्छरों का रहा है भारत की आजादी में, समझे? ऐसा समझ लो, ये सब देशद्रोही थे लगभग। ये पूंछ हिलाते थे अंग्रेजों के साम्राज्य के सामने अपने स्वार्थों के लिए। उनको जो है अंग्रेज, ब्रिटिश साम्राज्य उनको फुसलाकर पटा के रखता था। 57 के बाद 57 के बाद ब्रिटिश इंडिया केम अंडर द क्राउन। क्या बोलते हैं? ताज के अंडर आ गया भारत का शासन। ताज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और अंग्रेजों के अंडर में आ गया। समझ में आ रही बात? यस सर। जी सर। अंग्रेजों की महारानी, अंग्रेजों की महारानी के अंडर में। कौन थी महारानी इस वक्त अंग्रेजों की? कौन बताएगा? क्वीन एलिजाबेथ। नो,
क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तो अभी है। विक्टोरिया। विक्टोरिया। कब से कब तक थी विक्टोरिया? लॉन्गेस्ट रूलिंग क्वीन ऑफ इंग्लैंड कब से कब तक थी? किसी का नॉलेज है इतना? वो नहीं। हाँ, 1836 टू 1904 1901 और 2 में भी 66 साल तक रही। 66 साल। उसकी डेथ हो गई थी 1902 में। 36 में वो 18 साल की थी, तब से रानी थी, महारानी। उसका पति भी मर गया था 65 में, 1865। उसने इतना रूल किया था, तो वो उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि अब से पूरे भारत की मालकिन वो है। सब डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच बीच में, डिस्टर्ब हो जाता है। सर यस। तो सन 58 के बाद भारत में पहली बार कागज के रुपए चालू हुए। किसने किए थे और कब किए थे? जो आपकी जेब में रुपए के नोट हैं, ये कब शुरू हुए थे? जनरल नॉलेज। किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुए थे? वॉइस रॉय। अब वॉइस रॉय बोलने लगे। कागज के नोट भारत में चालू हुए थे कब? किसने चलाए थे? भारत का इतिहास नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 1857 का संग्राम। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के बाद कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पहली बार भारत को लूटने के लिए अब फसल वसल कौन इकट्ठी करे टैक्स के रूप में? कागज के नोट चला दिए। 1859 याद रखें जनरल नॉलेज के लिए। कागज के नोट भारत में पहली बार चालू किए थे ताकि टैक्स वसूली में आसानी हो। भारत को लूटने का नया तरीका खोज लिया और 1875 में दिल्ली में दरबार लगा, बहुत बड़ा, लाल किले पर। और भारत के जितने भी ये चमचे थे, रियासतों के मालिक थे, होलकर, सिंधिया वगैरह, ये सब दिल्ली में पूंछ हिला रहे थे। 1875 में विधिवत इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी रूलर क्वीन घोषित किया गया कि आज से आप चमचे रहेंगे, गुलाम रहेंगे भारत के पूरे देश के लोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के। समझ में आई बात? विक्टोरिया के चमचे, या वो तुम्हारी मालकिन है। तो ये जितने हमारे भारत के प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जिनको सरदार पटेल ने जिनका एकीकरण किया था भारत में, 500 550 थे कम से कम। जब इनका विलय हुआ था भारत में, जूनागढ़ के आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से बोलो। आवाज फट रही है, सुनाई नहीं दे रहा है सर। 564। हाँ, 550 लगभग बोला मैंने, मेरा नॉलेज भी अच्छा नहीं है इतना। 564 थे। 65 थे या 45 थे। 65 सर। कोई बात नहीं, 550 याद रखो, लगभग बोला हमने इसलिए। ठीक है सर क्या? प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें स्वतंत्र राजाओं के राज थे। राज, कश्मीर के राजा है ना, हरि सिंह, कश्मीर के राजा हरि सिंह। हैदराबाद के राजा गुलाम निजाम, हैदराबाद के निजाम,
उनको सेना बुलाकर, सेना भेजकर उनको कब्जे में किया, वो नहीं मान रहे थे। स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। जूनागढ़ सब जगह सेना भेजी सरदार पटेल ने, और सबको राइट कर दिया, मिला लिया, भारत बना दिया एक। आर्मी भेजना पड़ी हमें कई बार। चलिए, ये तो मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो मैं जो कहने जा रहा था कि जितनी भी रियासतों के मालिक थे, इन्होंने सन 75 में लाल किले में जाकर बढ़िया सज धज कर पूंछ हिला रहे थे इंग्लैंड की साम्राज्य के सामने, और बड़े नारे लगा रहे थे, बड़े खुश थे कि हम कितने खुशकिस्मत में हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि इंग्लैंड की महारानी के आज से गुलाम बन गए हैं, इतना सौभाग्य है हमारा। चलिए, तो ये जितने हमारे महान लोग रहे हैं भारत के, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और दूसरे भी, जिनको आज ग्रेट थिंकर्स ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे आप, देश के महान विचारक। लेकिन ये यदि आप ढंग से इनकी किताबें पढ़ेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे आज की डेट में, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की बहुत तारीफ की, बड़े गुणगान गाए कि हमारा सौभाग्य है, हम तो धन्य हो गए, अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे हैं, हमारी आत्मा उनकी आत्मा से मिल गई, अब हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, और हम चाहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य भारत में सदा बना रहे। राजा राम मोहन राय, ऐसी भाषा में दयानंद सरस्वती। आपको पढ़ाया जाता है कि ग्रेट लोग थे ये ग्रेट लोग हो सकते हैं क्या? नहीं सर। आपकी माँ को लूटा, आपकी माँ, मातृभूमि को लूटा, जिन्होंने आपकी माँ के साथ बदतमीजी की, भले सोने का हार भी दे दे कोई ऐसा आदमी, तो क्या आप उसको पूजेंगे? नहीं। लेकिन इन महान में जो आपको पढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखें, सतर्कता से पढ़ें, भविष्य में अपना दिमाग यूज करें। ये नहीं हो सकते महान जिन्होंने भारत माँ का इतना अपमान किया। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों का राज सदा भारत में बना रहे। नेहरू, गांधी और जितने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने पूरे जीवन बेकार में गंवाया, अपने भगत सिंह वगैरह ने, बिस्मिल्लाह खान, भगत सिंह, नहीं, ये मर मिटे देश के लिए। और ये कहते हैं कि सदा बना रहे। तो ऐसे दिमाग चलाओ, ऐसे सोचना सीखो। ऐसा बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा आपको जो फालतू बकवास से कचड़ा है। जब भी लगे ऐसा कि कभी नहीं हो सकता ऐसा कि जो आदमी ऐसा कहे कि अंग्रेजी राज सदा भारत में बना रहे, हमारा उपकार हो गया, तो ये गलत है सब। चलिए, क्रिटिकल सोच रखने की बात है। आइए चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं, मध्यकाल की ओर आते हैं दोबारा। तो मध्यकाल यूरोप की हिस्ट्री का हम देख रहे थे, जो धीरे धीरे जो है मध्यकाल में भी वही प्रॉब्लम हुआ। मध्यकाल में क्या हुआ? उत्पादन की शक्तियां रोज प्रगति करती रही, उत्पादन के संबंध वहीं खड़े हैं। समझ में आ रहा है? उत्पादन के संबंध किसके बीच में? उत्पादन की शक्तियों के बीच में। उत्पादन की शक्तियां क्या होती हैं पता है सबको? नोट किया हुआ है सबने या नहीं? उत्पादन स्थल जल्दी से नोट कर लें जिनके पास नहीं है। उत्पादन की शक्तियां किसको बोलते हैं? ये पेट्रोल है समाज की उन्नति का, इतिहास की उन्नति का पेट्रोल, नहीं तो ये खड़ी कार है जंग खाने वाली। सुन लो ध्यान से। उत्पादन की शक्तियां किसको बोलते हैं हम? कर्मस्थल। कर्मस्थल क्या होता है? खेत, जमीन। की आवाज साफ नहीं आ रही है, सुन लो ध्यान से। जिनको जो छूट गए हों, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, नोट करके रखें कॉपी में। अभी मिलेंगे तो मैं चेक करूंगा एक एक नोट्स आपका, एक एक नोट्स चेक करेंगे, उसके हिसाब से पास करेंगे आपको आगे। और आप में से शायद ही पास होंगे 50%। ध्यान रखना, बहुत सीरियस रहे हमारे साथ पढ़ाई के लिए। यदि सही में आपको पढ़ना है। वो उत्पादन की शक्तियां किसको कहते हैं? ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जिंदगी भर।
गप्पे मार के इतिहास पढ़ा लेंगे, नागरिक राजनीति शास्त्र पढ़ लेंगे किताबों में, ये चीजें वहां नहीं है। सब सुन लें ध्यान से। किस चीज से उत्पादन संभव होता है, कहने का मतलब, यदि हमारे पास पेन है, आज की डेट में कंप्यूटर है, मोबाइल है, पलंग है, कुछ भी है दुनिया की चीज, बैडमिंटन खेलने का रैकेट है, समझ में आ रहा है, चकला बेलन है, चपाती है, सब कुछ, पिन से लेके रॉकेट तक, जो कुछ भी हमारे विश्व में उपलब्ध है, ये उत्पादन करना पड़ता है, इसको पैदा करना पड़ता है। तो ये क्या चीजें हैं सब मिलकर जो इसको पैदा करती हैं? तो सबसे पहली होती है कर्म स्थल। हिंदी में मुझे मालूम क्या बोले, ठीक है ना। तो कर्म स्थल हो गया, जैसे खेत हो गया आपका, जमीन जिसपे हम भिंडी उगाते हैं, मिर्च उगाते हैं और गेहूं उगाते हैं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आई। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, उत्पादन कैसे संभव होता है किसी भी फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, सामाजिक आर्थिक ढांचा, सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे हम गुजरे हैं। अभी हम सामंतवाद में हैं, जिसमें दो वर्ग होते हैं, जो समाज की गाड़ी को दो पहिए हैं, इतिहास को मूव करने वाले दो पहिए, एक उत्पादन करता है, दूसरा उसका मालिक है। तो उत्पादन की शक्तियां होती हैं जिनका मालिक है सामंत। तो ये शक्तियां क्या हैं? जस्ट रिपीटिंग, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, आई हैव गिवन यू इन डिटेल, समझाने की कोशिश की है। उत्पादन की शक्तियां होती है जिससे गेहूं संभव होता है उगना, उदाहरण के लिए, या भिंडी या बैंगन, कुछ भी उगाते हैं। पहले क्या चाहिए? कर्म स्थल, स्थल होना चाहिए, लेकिन अपने आप में पैदावार नहीं होती। फिर क्या चाहिए? औजार चाहिए, औजार, कैंती, फावड़ा, हल, बैल, ट्रैक्टर, बीच में, समझ में आया, कुल्हाड़ी, आरी। यदि टेबल भी बनाते हैं आप तो कैसे बनाते हैं? पेड़ चाहिए, पेड़। तो पेड़ क्या है? कर्म स्थल है हमारा। लकड़ी, फिर औजार चाहिए उनको टेबल बनाने के लिए, जो जो भी औजार लगते हैं सबको पता है, लेकिन ये भी अपने आप में पैदा नहीं करते वस्तु को। तीसरी चीज चाहिए श्रम, हमारे दो हाथ। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो उत्पादन संभव होता है, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं हम उत्पादन की शक्तियां, और इन तीनों का मालिक होता है कोई और। तो हम, यानी उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के किसी विशेष संबंध में हम रहते हैं सामंत के साथ यहाँ। और ये उत्पादन की शक्तियां प्रतिदिन आगे बढ़ती जाती हैं, उन्नति करती जाती हैं, बेहतर करती जाती हैं उत्पादन को, ठीक है। कल जैसे बताया था, दादाजी कलम से लिखते थे, बांस की कलम से, अब हम बॉल पेन से, जेल पेन से लिखते हैं। तो कहाँ आगे बढ़ गए, लेकिन जो संबंध है वो वहीं खड़े रहते हैं। सामंत और किसान के बीच में जो संबंध है वो स्थिर है, और शक्तियां आगे बढ़ती हैं। तो एक ऐसा वक्त आता है जब इनमें तनाव पैदा हो जाता है, इस तार में तनाव पैदा होता है, और क्रांतियों के द्वारा ये टूट जाती है, और उस व्यवस्था की जगह ये उत्पादन की शक्तियां एक नई व्यवस्था को लाती हैं, या इनका दुरुपयोग कोई दूसरा कर लेता है, बड़े लोग, मालिक, और एक नई व्यवस्था को जन्म देते हैं। और वो सामंत के बाद थी वो व्यवस्था। कौन सी? जल्दी बोलो, कौन सी व्यवस्था में रह रहे हैं आजकल हम? सामंतवाद नष्ट हुआ तो कौन सी व्यवस्था आई उसके बाद? पूंजीवादी। वेरी गुड, पूंजीवाद के आप शिकार हैं सभी, आप उसमें रह रहे हैं। सन 1648 से पूंजीवाद की शुरुआत हुई, इंग्लैंड में क्रांति हुई, इंग्लैंड का गृह युद्ध बोलते हैं उसको, क्रॉमवेल एंड चार्ल्स प्रथम, इंग्लैंड की संसद और पूंजीपतियों के बीच में, व्यापारी पूंजीपति जो पैसे के मालिक थे, उत्पादन के साधन उन्होंने अपने हाथ में लिए। सामंत मर नहीं गए, सामंत खत्म नहीं हुए अभी, लेकिन सामंत के हाथ से अब जो है ड्राइवर नहीं रहा, अब समाज का ड्राइवर, पायलट जो है सामंत नहीं है, अब पूंजीपति बन गए। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1648 है,
कौन बोल रहा है? Excuse me, sorry, I'm interrupting you, but still हमारी इकोनॉमिक क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप प्लीज छोड़ सकते हैं। कवर अप कर सकते हैं, हाँ, कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ क्लास ओके ओके सो आई फिनिश हियर। कल से आप मैप लेके आए सभी, जस्ट रिपीटिंग प्लीज, कल से अपना मैप रखें। I'll take you to the world, you will start doing। ये मेरे ख्याल समझ में आ गया, पूंजीवाद में हम रह रहे हैं और ऐसे बदलते हैं सब। Okay, sir। Okay? ये याद रखें और समझा देंगे जब हम पुनर्जागरण Okay, sir। करेंगे। तो कल मैप के साथ आए सभी। Yes। चलिए Okay, thank you, sir। Thank you। Thank you। Thank you, sir। You can leave। Welcome, welcome।